welcome to my virtual class. Today I am going to take the first chapter of the history, and the name of the chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. आप इसका अंडरस्टैंडिंग कीजिए, इसका हेडिंग को what type of changes. Students, in the 6th standard you studied about the ancient history. Ancient history means about the civilization, how man became civilized, about the hunter-gatherers change into a civilized person, started to living in a particular place, starting of the agriculture and living in a group, and development of society, the development of the culture, all the things you studied in the 6th standard, and it is called as a ancient history. But in the 7th standard you will study about the medieval history. What is the meaning of medieval history? Medieval history means the history that it is in between the ancient history and the modern history. Ancient history और modern history के बीच का जो काल होता है उसी को हम लोग medieval history कहते हैं. And medieval history में सबसे ज़्यादा जो है changes आया था. A lot of changes took place in the medieval history. And this lesson, Tracing Changes Through 1,000 Years, it shows the basic idea about the what changes took place during that period. इस पीरियड में जो चेंजेस आए हैं उनका एक बेसिक आइडिया जो है हमें इस लेसन के थ्रू में मिलेगा. कौन कौन से चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस इन द इंफॉर्मेशंस, in the civilization, the culture, the religion and the language. Even languages में भी बहुत सारे changes आए हैं, तो उन सारे changes को हम जो है इस lessons में पढ़ेंगे. Students, look at the introduction of that lesson. What do you understand in the context in the chapter? इस chapter के through जो है कौन कौन से context को mainly पढ़ा जाएगा. इसमें जो है historians को mainly क्या बताया गया है. When historians read documents, texts and maps from the past, they have to sensitive to different historical background, the context in which information about the past was produced. जब भी historians किसी भी documents को या किसी text को या maps को जब वो बताते हैं तो उन्हें उस period के प्रति sensitive होना चाहिए कि उस period में कौन कौन से informations चले थे, कौन कौन सा कल्चर हुआ था, किस तरह का लैंग्वेजेस था और उस लैंग्वेज का आज के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से चेंजेस आया. जब तक इस मामले में सेंसिटिव नहीं होगा हमें जो है एक राउंड कॉन्सेप्ट ही मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्लियरली जो है पहचानना बहुत ही ज़रूरी है. मैंने आपको कहा था ना, इन द मिडिवल पीरियड वी हैव टू a lot of changes. What the changes in the information? Students, about the information, the changes in the information आप देखिए. Look at the map. Here, map 1. It was prepared by a Arabic historian Al-Idrisi during the year of 1154 CE. Look that map. It is the map of Indian subcontinent. लेकिन आज के से relevant देखें तो ये बिल्कुल आज के मैप से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है. It is very much different from the modern map. What type of different? आप लोग देखिए that South India. The South India is very much near to the North India. और mainly the Sri Lanka. Sri Lanka was at the top level. Top level में जो है श्रीलंका को दिखाया गया है. अब उस historian ने उसी किस context में इस चीज़ को बताया होगा ये जो है हम clearly नहीं, हमें कोई evidence नहीं मिला है. हर किसी के नज़रिए की बात है. हो सकता है कि उन्होंने उस एरिया उस समय जो पहचान करा है कि वो जो इवन उसमें उन्हें कन्नौज का भी डिस्क्राइब किया गया है. ऑल द थिंग्स आर रिटन इन द अरबिक लैंग्वेज. अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है कन्नौज, जो उसने स्पेल किया कुन्नौज करके स्पेल किया. वो इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उस प्लेस के बारे में भी डिस्क्राइब किया है. ऑल द थिंग्स डिस्क्राइब इन अरबिक लैंग्वेज. मैंने आपको कहा ना सब अरबिक लैंग्वेज में बताया गया है और आज के मॉडर्न मैप से मिलता नहीं है. But look at the second map. It was prepared by a French cartographer during the year of 1720. 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है and
that map according to some scientific knowledge because this was very much familiar to our modern map. आज के मैप से ये बहुत ज़्यादा ही मिलती है। ये फर्स्ट मैप के बनाने से के 600 ईयर के बाद में ये जो है नेक्स्ट जो सेकेंड मैप जो है वो बनाया गया है। और आप देखिए किस तरह से इंफॉर्मेशन में चेंजेस आ रहा है। डे बाय डे द टाइम के अनुसार जो है इंफॉर्मेशन में चेंजेस आती है। क्यों चेंजेस आती है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिफिक नॉलेज। जिस तरह से लोगों में नॉलेज और जानने की इच्छा बढ़ती है और साइंटिफिक वर्ल्ड में जाना शुरू होता है, तब क्या होता है ये जो चेंजेस जो है वो हमें हर चीज़ में देखने को मिलेगा। और यही चीज़ों को हमें इस लेसन में पढ़ना है, कौन कौन से चेंजेस जो है आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैप 1 के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप आज देखेंगे तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो किस प्रकार लिया जाता था ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में वो जो है एक गलत धारणा के रूप में जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हिस्टोरियंस को इस मामले में बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए। उन्हें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये किस प्रकार से किस ओर लेकर क्यों इसको इस तरह के मैप्स को बनाया गया है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि हमें जो है इस चेंजेस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होना चाहिए और हमें उस समय के हिसाब के अनुसार से जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, द मैप 2 विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो बनाया था वो मैप जो है मैक्सिमम इट वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो जो मैप थे वो इतना रेलेवेंट था, मॉडर्न मैप्स इतना बहुत, उनका प्रयोग ज़्यादातर जो है सेलर्स के द्वारा किया जाता था और उस समय के जो सेलर्स थे इसको जो है पर्टिकुलरली यूज़ करते। तो इस तरह से जो चेंजेस हैं ये चेंजेस जो है आपको देखने को आगे भी मिलेगा इन्फॉर्मेशंस में। इसी तरह से आगे बहुत सारे चेंजेस जो है डे बाय डे टाइम के अनुसार बदलती रहती है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर a person who makes the maps। मैप्स को बनाने वाले को जो है कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो आपने इस प्रकार से इंफॉर्मेशन में चेंजेस देखा। लाइक दैट बहुत सारे टर्म्स को जो है टर्मिनोलॉजीज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो क्या है? द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। इफ द इंफॉर्मेशन चेंज विद द टाइम द लैंग्वेज एंड मीनिंग कैन ऑल्सो चेंज। जिस तरह से इंफॉर्मेशन में चेंजेस आया उसी तरह से आपको लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मिडीवियल पर्शियन एंड द मॉडर्न पर्शियन आर वेरी डिफरेंट। जो है मिडीवियल जो पर्शियन जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो और आज के जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। द एग्जाम्पल मेनली जो डिफरेंसेस है वो जो है अब उस समय के वोकैबुलरी में और ग्रामर जो में जो है वो चेंजेस आपको मिलेंगे। तो लैंग्वेज में भी एक चेंजेस आपको देखा, जो मिडीवल पीरियड में यूज़ किया जाता था वो जो है आज के मॉडर्न पीरियड के जो पर्शियन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एंड टुडे द टर्म हिंदुस्तान एक सिंपल एग्जाम्पल है। हमारे जो देश का नाम है दैट इज हिंदुस्तान। हिंदुस्तान स्टैंड फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज जो है हिंदुस्तान का मतलब क्या? आवर कंट्री, नेशन स्टेट इंडिया। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज हिंदुस्तान। बट इन द 13th century 13वीं शताब्दी के बाद सुनिए आप, मिनाज़िर सिराज he was a historian used the term for the areas of Punjab, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उस समय जो है मिनाज़िर सिराज जो एक हिस्टोरियन है उन्होंने इस टर्म का यूज कहाँ तक सीमित रखा? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, क्योंकि वो जो है दिल्ली सल्तनत का पीरियड था। सल्तनत का एरिया जहाँ तक सीमित था उस एरिया तक ही उन्होंने हिंदुस्तान माना। जिस तरह से जो सल्तनत थी वो दिल्ली सल्तनत बढ़ते गई, उनका जो एरिया था वो हिंदुस्तान जो एरिया है वो बढ़ता गया। तो वो जो एरिया जहां तक कैप्चर किया था दैट एरिया दे कॉल्ड इट एज ए हिंदुस्तान। आप देखिए किस तरह से लैंग्वेज में जो है एक चेंजेस आ रहा है। आज हम किस तरह यूज कर रहे हैं वो पुराने मेडिवल पीरियड में किस तरह से यूज किया जाता था। बट बाबर
यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। लेकिन बाबर ने इसका कैसे क्यों किया? बाबर जो था, ही वॉज ए फर्स्ट मुगल एम्परर। आप सभी जानते होंगे अकबर का नाम तो आपने जो आपने सुना होगा। अकबर का जो फादर था वो हुमायूं, एंड हुमायूंस फादर वाज बाबर। यानी कि जो अकबर का जो दादा, जो जिसने हमारे भारत पर सबसे पहले एंट्री करी थी और मुगल एम्परर को स्थापित किया था, वो बाबर ने हिंदुस्तान को जो है वहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से, यहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर के हिसाब से उस हिंदुस्तान बना। वहाँ के फ्लोरा और यहाँ के जीव जंतुओं, फाउना और यहाँ के कल्चर, सब कॉन्टिनेंट, उस एरिया के जो कल्चर है, इन सबको मिलाकर उन्होंने क्या कहा? इनको हिंदुस्तान कहा। बट टुडे आज हम क्या कहते हैं? इट्स आवर कंट्री। फ्रॉम कश्मीर टू केरला, ऑल द पॉलिटिकल बाउंड्री से जो है हमारा सब कुछ कल्चर, ट्रेडिशन और हमारा जो कंट्री है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो किस तरह से टाइम के अनुसार जो चेंजेस है वो चेंज आपको देखने को मिल रहा है। कभी किस तरह से इसको यूज करते थे, आज इसको किस तरह से यूज करते हैं। इसी प्रकार से एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉरेनर वर्ड जो है, दैट फॉरेनर वी आर यूजिंग ए पर्सन हु इज नॉट बिलोंग टू आवर कंट्री। हमारे कंट्री से जो हमारा कंट्री का ना हो उसे हम क्या कहते हैं? द वर्ड फॉरेनर कहा जाता है। बट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड में क्या था? जो पर्टिकुलर उस गांव या उस शहर का जो व्यक्ति है, वो अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है किसी इवेंट, अब फॉर एग्जांपल आप सोचिए उत्तर प्रदेश का कोई गांव है और यहाँ से महाराष्ट्र से या साउथ से कोई व्यक्ति वहां पर जाता है, तो उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता था? फॉरेनर शब्द कहा जाता। परदेशी, हिंदी में द टर्म इज कॉल्ड एज ए परदेशी, एंड इस पर्शियन में उसको बोलते थे अजनबी। मतलब वो अपने एरिया के जान पहचान लोगों को ही वो क्या कहते थे? अपनापन रहता था। और बाहर से अपने पर्टिकुलर अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अपने स्टेट के पड़ोस से भी अगर उस बाउंड्री को छोड़कर दूसरे गांव के या अपने कल्चर को छोड़ा हुआ दूसरा एक नया कल्चर का कोई आता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ए परदेशी। द सिटी ज्वेलर और फॉरेस्ट ज्वेलर जो है, सिटी ज्वेलर को क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? ही वॉज अवर परदेशी। इस तरह से अजनबी या परदेशी शब्द है। तो कितना बड़ा चेंजेस आ गया है। एक फॉरेनर शब्द जो पहले मिडिवल पीरियड में उसको किस तरह से यूज किया जाता था और आज हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे यूज करते थे। तो बच्चों आपने देख लिया होगा किस प्रकार से टर्म्स में, वर्ड्स में, इंफॉर्मेशन में डे बाय डे जो है चेंजेस आता है। इसलिए मैंने कहा कि हिस्टोरियन को इसमें बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए। जब उसको वो डिस्क्राइब करता है तो उसे वो देखना होगा कि वो किस पीरियड के समय है। आज हम मॉडर्न पीरियड में अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में उस शब्द को यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ और मीनिंग होगा, लेकिन अगर हम उसे मिडिवल पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में जब यूज करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। तो ही मस्ट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट मीनिंग्स, द लैंग्वेज, ऑल द थिंग्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के लिए जो हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सोर्सेस को दिया, क्योंकि हमें पास्ट के बारे में जानना है तो हम खुद तो नहीं जा सकेंगे, या हमें पता चलना है तो सिर्फ उसका तरीका क्या है? कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के थ्रू में, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है, जो कई तरह के जो है रिकॉर्ड्स हैं, इसके थ्रू ही हम जो है हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी द हिस्ट्री? हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज करते हैं? आपने इसे जो है 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा अबाउट द सोर्सेज। Historians still rely on coins, inscription, architecture and textual records information. Historians जो है हमेशा पास्ट के बारे में they get knowledge through the coins, inscriptions, architecture and textual records. अपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि किस तरह से उन्हें पास्ट के बारे में नॉलेज मिला है थ्रू द कॉइन्स। उस जमाने में राजाओं के द्वारा जो चलाए जाने वाले कॉइन्स थे, द रूलर्स के जो कॉइन्स थे उसके थ्रू, एंड द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मीन्स जो वॉल्स पे और अभिलेख जो लिखा जाता था, दैट इज कॉल्ड एज ए इंस्क्रिप्शन। आपने सम्राट अशोक के बारे में जो पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में, उनके इंस्क्रिप्शन के थ्रू ही जो है हमें बहुत सारे उनके रूलर्स के बारे में पता चला है। एंड आर्किटेक्ट एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, उसके थ्रू भी जो है हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, यही जो सोर्सेस है इसके थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। एंड बट
In the medieval period has some changes. What the changes? That textual records increased in this period. In this period, they gave more importance to the textual records. Why? Because through this period, paper became cheaper and was available more widely. मिडीवियल पीरियड में क्या था, पेपर जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल था और बहुत ज़्यादा चीप था, तो जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो हमें जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में ही ज़्यादा मिले हैं। सो उस समय के टेक्सचुअल रिकॉर्ड था, उसमें क्या क्या चीज़ों को किसके बारे में हमें पता चलती है, नॉलेज मिलती है। पीपल रोट होली टेक्स्ट, उसे पवित्र ग्रंथों को लिखा जाता था। क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स एंड रेटर, उनके जो है रूल्स और उनके जो लिखित बातें हैं उनके बारे में जो है रूलर्स के शासनकाल के बारे में जो है वहाँ पे हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, उस जमाने में जो सेंट्स के द्वारा लिखे हुए उनके कहे हुए थॉट्स को, और पिटिशंस जो है रूलर्स को दिए जाने वाले पिटिशंस के, और जुडिशियल जो भी रिकॉर्ड्स होता है उसको जो है संभाल के रखा जाता था। और यही जो हमारा जो है सोर्स बना पास्ट के बारे में, मेडिवियल पीरियड के पास्ट के बारे में जानने का रिकॉर्ड। तो मैंने आपको टेक्सचुअल रिकॉर्ड के बारे में बताया था। तो दिस ऑल बिकेम द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस का मेन सोर्स था, और ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड they developed the textual records and text, but how it was circulated? As we know that there was no printing press at that time. जैसे कि हम जानते हैं उस समय कोई भी तरह का प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो अब ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, ये लिखा हुआ है, इनको कैसे सर्कुलेट किया जाए, इनको कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में जो है ये कैसे किया जाता था, ये आप दो तरह से थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था, मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स दैट द रिटन रिकॉर्ड्स रिटन ऑन द पाम लीफ पे लिखा जाता था और उसे मेंटेन किया जाता है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स बुक्स यूजुअली कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। इसको जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को है जो बुक्स जो है यूजुअली इन्हें जो है रिकॉर्ड, इनको जो है कलेक्ट किया जाता था। वहाँ के वेल्दी पर्सन जो है रिच पर्सन्स होते थे, मोनास्ट्री जैसे बौद्ध लोग जो थे भिक्षु रहते थे, और मोनास्ट्रीज थे, और रूलर्स थे एंड टेम्पल्स थे, मंदिरों पे जो है इस रिकॉर्ड को संभाल के रखा जाता था। रूलर्स इसको संभाल कर रखा जाता था। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है इसको जो है किस तरह से जो है आगे सर्कुलेट करते थे, तो उस समय जो होता था स्क्राइब्स हुआ करता है। स्क्राइब्स किसे कहा जाता है? The excellent copywriters who copied the manuscripts by hand. स्क्राइब्स के द्वारा जो है ये सर्कुलेशन होता था रिकॉर्ड्स का। किस तरह से? किसी ये स्क्राइब्स होते कौन थे? ये थे एक्सीलेंट कॉपीराइटर्स। ये क्या करते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स को उसको उनको कॉपीड किया जाता था और उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता था। तो ये जो सब्सक्राइब्स थे वो हेल्दी पीपल रहते थे, रूलर्स रहते थे, उनके अंडर में ये स्क्राइब्स लोग होते थे, और उन लोग जो है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है बराबर कॉपी करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता था? अब प्रिंटिंग प्रेस में है तो एज इट इज वो प्रिंट होकर आ जाएगा, लेकिन इंसान उसको कॉपी करता है। आप फॉर एग्जांपल ही आप लीजिए कि आपने जो है एक होमवर्क किया, आपके दोस्त ने उसको एज इट इज उतारा, लेकिन क्या होता है उसमें से कोई ना कोई वर्ड जब उसे कंफ्यूज हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने तरीके से उसे लिख लेता था। तो यही प्रॉब्लम जो है मैन्युस्क्रिप्ट से जब उसे स्क्राइब्स के द्वारा लिखा जाने लगा तो ये प्रॉब्लम जो है अराइज होना शुरू हुआ। और स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। उन लोग क्या करते थे, जो उनके समझ में नहीं आता था तो वो उनको चेंज कर दिया जाता था, एंड दिस स्मॉल चेंजेस ग्रू सब्सिक्वेंटली ऑन फ्यूचर कॉपी। और ये जो है धीरे धीरे ये जो स्मॉल में जो चेंजेस था वो धीरे धीरे बढ़ जाता था, और बाद में क्या होता था, जो एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा गया है उससे काफ़ी डिफरेंस होता था कॉपीड किया हुआ जो नोट्स होता था, जिसे स्क्राइब्स जो है लिखते थे, एंड विच क्रिएटेड द कंफ्यूजन्स।
इस तरह से जो है कंफ्यूजन होता है। इन्फॉर्मेशंस में आप सोचिए लैंग्वेजेस में चेंजेस आ जाता है। आप ये बराबर जब इंसान के द्वारा लिखा जाता है तो ये मिस्टेक्स बराबर होती है। हम कोई वर्ड को बोलते हैं, आपने कोई गेम खेला होगा, जैसे मैंने कुछ वर्ड को कहा, वो जो है पहुँचते पहुँचते जो है वो वर्ड जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। बच्चों आप लोग भी कुछ देखे, आप कुछ गेम खेलते हो ना, तो उस समय क्या होता है, हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं, वो लास्ट में जब एंड में जब पहुंचता है तो वो वर्ड कुछ और बदल जाता है। तो सेम सिचुएशंस जो होता है ये यहाँ पर भी क्रिएट हुआ स्क्राइब्स के द्वारा। स्क्राइब्स के मतलब आप समझ गए होंगे, द एक्सीलेंट कॉपीराइटर्स। कॉपीराइटर्स होते थे, वो मैक्सिमम जो है उनके लेटर्स मिस्टेक नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ स्मॉल चेंजेस आते हैं। जब उससे दूसरे स्क्राइब लिखता था, उस स्मॉल चेंजेस को फिर से वो कुछ बदल देता था। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा चेंजेस में बदल जाता है। इस प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो है स्क्राइब में जो कॉपीड होता है वो कुछ और में बदल जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम जो है मिडिवल पीरियड में था, इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आया था। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हिस्टोरियंस को कभी कभी जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जो है स्क्राइब्स को भी वो खुद पहचान नहीं पाते थे। फॉर एग्जाम्पल ऑन द ओकेजन, और हमेशा क्या होता था, कुछ हिस्टोरियंस जो है उसको रिवाइज्ड फॉर्म में भी लिखते थे। द 14th century chronicle Ziauddin Baroni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। जो जियाउद्दीन बेरोनी था, उन्होंने जो है क्रॉनिकल, जो रूलर्स के क्रॉनिकल के बारे में फर्स्ट 1356 में उन्होंने जो लिखा था, उसके बाद उसका अनदर वर्जन, उसका जो सेम वर्जन किया था 2 years लेटर के बाद में। The two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s। 1960s तक जो है वो समझते थे कि वो दोनों जो है डिफरेंट है, वो उनका जो है वर्जन नहीं है, उनका रिवाइज्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा चेंजेस आ चुका था 2 साल के अंदर में। तो 1960s में जाकर जो है हिस्टोरियंस को ये मालूम हुआ कि वो जो है सेम बुक को जो है उन्होंने 2 बार, इस किताब को जो है इस क्रॉनिकल के बारे में जो है 2 बार उन्होंने लिखा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही पर्सन के द्वारा में जब रिवाइज्ड फॉर्म में लिखकर ही इतना बड़ा चेंजेस आ सकता है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चेंजेस है आपको हर मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद जब स्क्राइब्स के कॉपीड किया जाता था तो ये चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा मिलती थी, और जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता था फॉर द हिस्टोरियंस। एंड नाउ द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। जिस तरह से जो है लैंग्वेजेस में चेंजेस आया, इंफॉर्मेशन में चेंजेस आया, उसी प्रकार से जो है सोशल एंड पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस आया था। कौन कौन से चेंजेस आया? लोग मिडिवल पीरियड में जो है मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, लोग जो है एक जगह से जो है दूसरे जगह में जो है माइग्रेट करना शुरू हो गया था। पीपल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना शुरू कर गए थे। जब वे आते थे अपने साथ में न्यू डिफरेंट कल्चर, न्यू डिफरेंट सोसाइटी, जो उनका जो पहनावा, उनका जो लैंग्वेज, उनका जो तौर तरीका जो है वो उस ग्रुप को दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से उस एरिया में जो है एक बदलाव आ जाता था, और वो बदलाव जो है आपको इस मिडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका प्रमुख वजह क्या था? बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो स्टूडेंट्स, today we studied about the some changes in the information, language and other things. Later we will study about the social and political changes in the medieval period. Medieval period में जो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के बारे में है वो हम आपको पार्ट 2 में डिटेल में बताएंगे। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पॉलिटिकल और सोशल में बहुत सारे चेंजेस आए थे मिडिवल पीरियड में, बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ द पर्सन, लोगों का आने जाने की वजह से कल्चर में और पॉलिटिकल में बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस आए थे। इस चेंजेस को डिटेल में जो है पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगी। सो इस पार्ट 1 में आपने जो कुछ भी समझा उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने जा रही हूँ, कि मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है।
तो क्वेश्चन जब आप उसके आंसर करोगे तो आपको वो जो है क्लियर हो जाएगी कि ये जो लेसन में आपको कहाँ तक समझ में आया है। So students, now I am giving you some home assignments. The question number 1. Who was considered a foreigner in the past? And the question number 2. In what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? Number 3. What are the difficulties historians face in using manuscripts? Another question is, define the words. The number 1, manuscript. Number 2, inscription. Number 3, cartographer. आप जो है ये जो असाइनमेंट दिए हैं उसको क्लियरली अपने कॉपी पे लिखिए और उसे कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। आप चाहे तो अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं और आप इसको होम असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। होम असाइनमेंट को जब आप कंप्लीट करते हैं तो कोशिश करिए कि खुद आप अपने आप से उसको लिखें, क्योंकि जब आप इसे अपने आप लिखेंगे तो आपको ये थॉरोली आपको मालूम हो जाएगा कि आपने जो है कितना इस लेसन को समझ पाया है। उसके बाद में आप बुक्स में देखिए कि आपने जो लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। आप इसके बाद में आप अपने टीचर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे होप है कि ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट जो है पार्ट 2 के साथ में इस लेसन को आगे बढ़ाने जाऊंगी। तब तक के लिए बाय।